Hey guys, hope you're all doing good. Let's start today's class. Let me share my screen. My screen visible? Okay. Let's work on Git command line. How to do? Yesterday you have installed the Git bash. So then bash. You can let me show you this first. Bash. See in this Git bash. Now there is no location. Which location you are in? It will be the normal HP folder which you will be having in your desktops already. So there are a few commands which you should know. First is cd, which is change directory to move from one location to another in a desktop. So cd move to desktop. First, okay, yes, and I just clicked on tab. So in this folder, here you will be having desktop. So it will open it this way. You click on tab and see here you can see it has moved to desktop. So now this location is desktop, and another command you can say ls. Okay. These are the list of items which are present on my desktop. You can verify them. You can see 360 total. Fourth sem here. What this folder is. Yeah. All these folders, you will be getting the list of them. To create a new folder, you can write mkdir. This is new directory and name of the folder which you want to create. A new folder has been created in desktop because I am in the desktop. It has been created on your desktop location. The new folder. Now you can move to that folder by clicking cd e x, and if you click on tab, you can see example coming because it checks the names of the folder and it just passes through. So you can move to that folder. You can create a file by writing touch test.txt. There you go. Test.txt, a new txt file has been created. Nothing you can do with that. These are the few commands you have to know. Mostly you will be using cd just to move and nothing else. So for now, let's get started with this. Let me share this link with you. This is the link. All of you just open this link and fork this project. Like I said yesterday, fork in the sense you will be making a copy on your own repository. I have already forked it. Let me check. It's not so. Yeah, it is. I'll just delete this. Okay. So since I haven't forked, just click on this. I'm having two accounts, so it's this. So just go with your account. Okay, now this has been. Now I have forked this repository. See, you can see my username with this. Before it was MLH. Now since I have forked it, my user ID and the repository name of the repository. So start working on your. Go here. You will be having a green button like code. In this you can copy this URL
copy this URL and then git bash to go a step back for the repository cd dot dot. Then you will go back to desktop. Just you can see the parent directory. To go to the parent directory, you have to click cd dot dot. So you can go to the parent directory of the example. This desktop, so I have reached desktop. Now to clone this repository, you have to click git clone and paste the URL which I have just copied and click enter. Sorry guys, it was already cloned, so I got that error. When I clicked clone, I got this repository, and whatever the contents are there in the repository, I will be getting on my local desktop. See here, src static. Git ignore is something a file which you won't be getting. Don't consider it. Package, readme, locations, license, locations, package, geocode, readme, license. These all you will be getting. Okay, just put an yes if everybody has reached this step. वो पता चला अब तक क्या चला अभी तक कि नहीं पता चला? अभिषेक, नंदिनी, रूबानी, सर वो cd डॉट डॉट वाला कमांड तो मेरे में लिया ही नहीं। क्या बोल रहा है? गिट बैश पे जो आपने डाला cd डॉट डॉट वाला कमांड डाला था, हाँ, ये पता नहीं क्यों लिया नहीं। अगर तू अभी तेरे ले यहाँ लिया, पे ले क्या दिखा रहा है? सर ले लिया वो सर स्पेस ले लिया था cd के भी। अच्छा, किसी और को कोई भी दिक्कत? अब यहाँ तक तुम्हारा क्लोन हो गया कि नहीं होगा ये बताओ पहले। सबका क्लोन हो गया तो उन्होंने एक बार फिर से बता दीजिए। एक सेकंड वापस बता देता हूँ। फोक तो कर लिया ना? फोक तो समझ गया ना जो लिंक मैंने भेजी है ये वाली? वापस ये जो लिंक है ये लिंक खोलो और सिर्फ फोर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से अपने आप तुम्हारा फोक हो जाएगा रिपोजिटरी। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन आएगा देखना, यहाँ पे तुम्हारा नाम आएगा, पहले वो चेक कर लेना। यूजर नेम जो भी दिया है वो अगर आ गया हो तो तब जाके यहाँ पे कोड करके बटन होगा जिस पे क्लिक करना, ये कॉपी करना है तुम्हें। या तो यहाँ पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे ये बटन है कॉपी करने के लिए, बस जस्ट इस पे क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा। बाद डेस्कटॉप पे मूव कर लेना वरना तुम्हें फाइल दिखेगी नहीं। पहली चीज डेस्कटॉप पे मूव कर लेना सब लोग, सीडी करके डेस्कटॉप लिख देना तो डेस्कटॉप में मूव हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर मेरा डेस्कटॉप पे मूव नहीं हुआ। CD DES करके टैब करके क्लिक करना एक बार। मैं ऐसे आ जाता हूँ, CD DES टैब क्लिक करना तो ऐसे आएगा, डेस्कटॉप स्लैश करके एंटर करना तो यहाँ पे डेस्कटॉप करके आ जाएगा। मतलब तुम डेस्कटॉप वाले फोल्डर में मूव हो गए करके। क्लिक करना है, डेस्कटॉप करके एंटर क्लिक करना है बस। नहीं CD DES और फिर टैब क्लिक करना है। हाँ मतलब टैब तो शॉर्टकट है कि जो लिस्ट होती है वहां पे उसमें चेक करके अपने आप आता है। हाँ टैब क्लिक करो। कुछ आ रहा है क्या? टैब से कुछ नहीं हो रहा।
तो एक बार ये पूरा लिख दो ऐसे DESKTOP कर, डेस्कटॉप लिख के एंटर करो, हो जाएगा। अभी भी वही आ रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तुमने तुम्हारे गिट में यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे ये एक सिंबल आ रहा है क्या बस, यहाँ पे ऊपर आ जो रहा आता है, है mingw के बाद आ रहा है एक। हाँ ये ऐसे एस एस टाइप हाँ सा स्लीपिंग ऐसा आ रहा है। हाँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में कैप्स लॉक करना है डी, और यहाँ पे बैक स्लैश करना। दोनों कर रहा है। बाद में चैट पे भेज रहा हूँ, एग्जैक्टली यही कॉपी करके डाल। बोल कौन रहा है वैसे नाम? रुबानी। रुबानी? नहीं हुआ क्या रुबानी अभी भी? नहीं हुआ। तो एक काम करो अभी के लिए, मैं बाद में देखता हूँ तुम्हारा इशू। डेस्कटॉप पे आके सिंपल राइट क्लिक करना, तो यहाँ पे गिट बैश शेयर करके आ रहा होगा तुम्हारा, देख ऐसा आ रहा है क्या? आ आ रहा हाँ है। तो सीधा सीधा गिट बैश खोल लो एक बार, यहाँ से डायरेक्ट खोल दो ताकि तुम्हारा डायरेक्ट इस डेस्कटॉप से चालू हो। फिर अभी यहाँ पे ऊपर डेस्कटॉप आ रहा होगा, देख एक बार खोलने के बाद। आ रहा है। अभी डेस्कटॉप आ रहा है ना? हम्म, हाँ चलो ठीक है। अभी क्लोन करना है तुम्हें तो क्लोन करने के लिए git क्लोन, और ये वाला यहाँ पे कोड में जाके ये वाली लिंक कॉपी करनी है, और बस एंटर, लोडिंग होकर क्लोन हो जाएगा और तुम्हारे डेस्कटॉप पे ऐसे रिपॉजिटरी बन जाएगी डायरेक्ट अपने आप। सर गिट क्लोन के बाद पेस्ट करना है ना इसी को? हाँ गिट क्लोन के बाद वो जो यूआरएल तुमने कॉपी किया ना उसे पेस्ट करना है। ये वाला कमांड चला लेना उसमें। सबका क्लोन तो हो गया ना? यस सर। क्लोन हो गया। अभी हम्म, अभी तुम्हें वो रिपॉजिटरी पे जाना है, उस वाले फोल्डर में जहाँ पे तुमने किया है। तो उसके लिए उसका नाम देख लेना, MLH लोकल होस्ट है ना, तो CD MLH और टैब क्लिक करोगे तो पूरा नाम आ जाएगा। अगर नाम नहीं आ रहा हो तो यहाँ से नाम कॉपी कर लो और CD के बाद वो पेस्ट कर देना। पेस्ट, तो उस वाले फोल्डर में तुम चले गए कि वाले फोल्डर में अगर ls करके लिखोगे तो इसमें जो भी है ये सारे लिस्ट सब पूरा आ जाएगा। SRC वाला फोल्डर, स्टैटिक वाला फोल्डर, ये डॉट गिटहब नहीं आएगा, ये गिटहब का होता है, वो अपने आप क्रिएट कर लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी एक काम करो, इसमें तुम test.txt वाला एक अलग से तुम फोल्डर बनाओ, फोल्डर नहीं फाइल बनाओ। याद रखना फाइल के लिए टच है कमांड, टच स्पेस फाइल का नाम और txt.txt करके। फोल्डर होता है तो mkdir मतलब डायरेक्टरी होता है। तो अभी के लिए फाइल बना लो टच test.txt।
ये वाला नया फाइल क्रिएट हो गया। तो अभी तुमने इस पे चेंज कर दिया, अपने लोकल एनवायरनमेंट पे चेंज किया है। यहाँ पे कुछ तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, वो वाली फाइल ऐड नहीं हुई। तभी उस वाली फाइल को इसमें ऐड करने के लिए गिटहब में, मतलब क्लाउड पे जाने के लिए अभी तुम्हें कमिट करना होगा। कल कैसे यहाँ से अपन ने जैसे किया था कमिट करके इस पे चेंज करके, वैसे ही यहाँ पे अभी टेस्ट वाला फोल्डर डाला है। और काम करो, टेस्ट वाले फोल्डर में कुछ लिख दो, अपना नाम लिख देना, उसके बाद जो लिखना है लिखना। ये तुम्हारा नाम है तो पता तो चलेगा कि हाँ अच्छा ये है, इसने ऐड किया। तो सेव करके क्लोज कर दो। तो अभी इसमें जो भी चेंजेस करते हो ना इस फोल्डर में, जो भी किसी भी फाइल में, उसे कौन सा फोल्डर चेंज हुआ है चेक करने के लिए git status स्टेटस और एंटर करोगे। देखो मैंने ऐड किया है जो फाइल, इसलिए ये वाला आ गया कि अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब नया फाइल है इसलिए अनट्रैक्ड फाइल्स है। और अगर तुम कुछ चेंज करते हो तो मतलब कि यहाँ पे लिख दिया, लोकेशंस वाला चेंज कर दिया मैंने फॉर सपोज, तो वापस गिट स्टेटस चेक करोगे, देखो मॉडिफाइड करके आया। अगर जो ऑलरेडी फाइल इसमें है उसको अगर चेंज करते हो तो ऐसे मॉडिफाइड करके आता है। और अगर नया फाइल ऐड करते हो टेस्ट, तो ऐसा आता है अनट्रैक्ड फाइल्स टेस्ट डॉट टीएक्सटी का। तो अभी के लिए तो लोकेशन से मैं हटा रहा हूँ, ये जरूरत नहीं। फिलहाल जस्ट वापिस चेक कर लो, देखो सिर्फ ये एक ही है। तो ये वाला चेंज किया, अभी इसको ऐड करना है तो गिट ऐड और डॉट, अगर एक तुम सिंगल फुल स्टॉप लगाओगे तो जो भी फाइल चेंज हुई है सब ऐड हो जाएगी। डॉट मतलब सेलेक्टिंग ऑल होता है। और अगर तुम्हें पर्टिकुलर फाइल ऐड करनी है तो फाइल का नाम लिख दो ऐसे टेस्ट डॉट टीएक्सटी कर, तो सिर्फ वो एक ही फाइल ऐड होगी। अब मल्टीपल फाइल्स होगी तो स्पेस करके वो फाइल का नाम, सेकंड फाइल का नाम स्पेस देके तीसरा फाइल ऐसे। अभी के लिए तो या तो टेस्ट डॉट टीएक्सटी लिख सकते हो या फिर सिंपली डॉट डॉट। चलो एक काम करते हैं, पहले ब्रांच बनाना सीखा है। गिट चेकआउट करके लिखना -b और ब्रांच का नाम जो तुम देना चाहते हो, अभी अपना नाम दे देना ऐसे गिट चेकआउट -b और अपना नाम। अभी ब्रांच में चेंज करते हैं, अभी मेन में चेंज नहीं करते। ब्रांच बना के फिर करोगे तो वो सही रहेगा। तो अभी के लिए इसे डिलीट कर दो और नया ब्रांच बना लो गिट चेकआउट -b और अपना नाम लिख के स्विच टू अ न्यू ब्रांच। नाम अभी नया है इसलिए ऐसा आया है, वरना वापिस अगर तुम्हें चेंज करना हो बैक टू, अभी यहाँ पे देखो ब्रांच का नाम आ जाएगा आगम। मैंने नया ब्रांच में किया इसलिए मेरा नाम आ गया। पहले होता है जनरल मास्टर होता है या फिर मेन करके होता है, दो चीजें होती है। तो कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। वो गिटहब का चेंज होता रहता है इस कारण से है। तो मास्टर हो या मेन हो दोनों सेम है। तो फॉर नाउ यू हैव चेंज टू द मास्टर from master branch to agam branch. If you want to again go back to master branch, you have to click git echo, write the name of the branch, जो भी है सिर्फ ब्रांच का नाम, switch to branch master, बस ऐसे ही। अभी के लिए तो अपना नाम ही डाल देते हो, इसी में काम करते तो स्विच टू ब्रांच आ गया बस। ब्रांच चेंजिंग हो गया ना, नया ब्रांच क्रिएट कर लिया ना सबने। यस नो एक्सक्यूज मी सर, हाँ
सर ये तो इसमें आ रहा है फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। तुमने शायद उसमें नहीं किया। तुम इस फोल्डर में मूव हुए क्या, MLS लोकल होस्ट वाले में? शायद सर नहीं। कैसे मतलब? अभी यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, डेस्कटॉप, और ये वाला फोल्डर का नाम भी आ रहा है ना। तुम उस फोल्डर में जाके किए कि नहीं किए ये वाला स्टेप? ये CD और फोल्डर का नाम, चेंज डायरेक्टरी है, चेंज द डायरेक्टरी टू दैट फोल्डर, ऐसे। ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट किया कि नहीं किया? सर ये नहीं किया था। हाँ, इसलिए वो क्या है कि डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप पूरा तुम्हारा गिट पे नहीं है, तो तुम्हें इस पे जाना पड़ता है, इस वाले फोल्डर में। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज्ड है, इसलिए तुम गिटहब से क्लोन किए हो, इसलिए गिट इनिशियलाइज्ड होता है, तो तब जाके तुम्हारा कमांड गिट वाला सेट होता है, वरना गिट वाले कमांड ये नहीं आते। इस वाले फोल्डर में जाओ और उसके बाद गिट स्टेटस करके डाल देना। ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू चेंज करके आएगा, एक बार देखना। किसी और को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, चैट पे डाल दो, वरना यहाँ पे मूव होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट डाल देना, गेट चेकआउट -b मतलब न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहे हो, इसलिए -b लिखना पड़ता है, वरना डायरेक्टली ऐसे लिखना होता है। तो न्यू ब्रांच है इसलिए गेट चेकआउट -b, और अपना नाम दे देना फिलहाल के लिए। ब्रांच का नाम जो भी रखना होता है वो इन्वर्टेड कॉमास में, याद रखना ये चीज, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आता है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास का ये होता है कि ये कमेंट की तरह लेता है, इसको रीड नहीं करता कमांड की तरह, एक तरीके से कमेंट की तरह ही रीड करता है। तो नाम है, स्ट्रिंग है करके ले लेता है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना जरूरी है, तभी तुम्हारा होगा। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए, देख लो सब लोग, डेस्कटॉप और ये फोल्डर MLH वाला, और अपना ब्रांच का नाम जो दिया है तुम लोगों ने। यहाँ तक सबका हो गया? अभी किसने पूछा था वो गिट वाला, वो हो गया ना? हाँ सर हो गया। हो गया ना? अभी ये मास्टर वाला हो गया ना, यहाँ पे चेंज हो गया ना तुम? मास्टर या मेन जो भी होगा यहाँ पे, उससे अपने नाम से ब्रांच क्रिएट कर लिया ना? तो अभी अपने वाले ब्रांच में चेंज कर लो। अपने वाले ब्रांच में कुछ वही पुराना कमांड डाल दो। से अपने कीबोर्ड पे अप बटन दबाने से जो भी बैक पीछे जो कमांड्स किए थे वो सब आते हैं, जैसे कि दिखा देता हूँ। सबसे फर्स्ट git status checkout -b master आगम मेरा। अभी अप बटन दबाने से पिछले जो भी कमांड थे वो आ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए test.txt नया क्रिएट हो गया, और स्टेटस चेक कर लो, ये हो गया। अभी git add डॉट मतलब सारी फाइल्स, तो ऐड हो गया। अभी कमिट कर रहे हो तुम लोग। जो अपन ने कल मैसेज लिखा था ना नीचे कमिट में कि कैसे होता है, दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कमिट चेंजेस में यहाँ पे जो मैसेज लिखते हैं ना, वही वो ये कमांड है गिट कमिट वाला जो कर रहे हैं अभी, वो कमांड ये गिट कमिट -m मतलब मैसेज, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना जो भी तुम कमेंट डालना चाहते हो। अपडेटेड या फिर ऐड किया ना फाइल, आज एडेड
test.txt ऐसे लिख दो, जो भी है, कैसे भी लिख सकते हो और क्लोज कर दो। ये मैसेज है इसलिए इसको ऐसा लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग की तरह वो लेगा तभी। git commit -m added test.txt, तो यहाँ पे आएगा वन फाइल जो भी तुमने चेंज किया है वैसे आएगा। ऐसे यहाँ तक सबका हो गया, कमिट हो गया ना। कमिट होने के बाद अभी पुश करना है इस फाइल को, मतलब अपलोड करना है, गिट पुश। और यहाँ पे ब्रांच है ना, जनरली अगर मेन ब्रांच होता है तो गिट पुश ओरिजिन, ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है जो भी हो, केस सेंसिटिव होता है, पहले ध्यान रखना ये चीज। कैप्स लॉक होगा तो कैप्स लॉक लिखना कंपलसरी है, मैंने लिख दिया गलती से इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ। जनरली अवॉइड करना, स्मॉल में लिख देना सब कुछ, वही बेटर रहता है। और गेट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम जो भी है। और ओके, शायद तुम लोग को नहीं आ रहे, अभी तुम लोग का शायद हुआ नहीं होगा, गिटहब का एक्सेस मांग रहा होगा, देखना एक बार। अगर गिटहब का एक्सेस मांग रहा है तो बताना मेरे को, अगर नहीं मांग रहा तो पर्सनल वेल एंड एक्सेस गुड। टोकन मांग रहा है। हाँ, वहां पे ऊपर साइन इन विद ब्राउजर भी आ रहा होगा एक ऑप्शन, हाँ हाँ सर। साइन इन विथ योर ब्राउजर कर दो। मैंने पिछली बार अभी करते समय मैंने ऑलरेडी कर लिया था, इसलिए बस साइन इन विथ योर ब्राउजर करना। तो तुम्हारा ईमेल आईडी मांगेगा शायद कि कौन से अकाउंट से कर रहे हो। और अगर तुम्हारा ऑलरेडी गूगल पे तुम लॉग इन हो चुके हो, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड दिखा रहा है, हो गया। हाँ बस ऐसे ही, अगर तुम साइन इन विद ब्राउजर करके, अगर तुम्हारा गिटहब ऑलरेडी गूगल पे लॉग इन होगा ना तो वो ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड आएगा, वरना गिटहब हाँ का सर। पूछेगा ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आ जाएगा। और ये चीज ये सिर्फ एक ही बार होता है कि जब स्टार्टिंग में करते हो तो कौन से आईडी से तुम्हें पुश करना है, कौन से नाम से, वो बताने के लिए कि अच्छा इससे हो रहा है, होना है। तो किट को पता लगने के लिए तुम्हें सिर्फ ऐसे दिया जाता है। अभी नया आया है, अभी देखो मैंने अभी चेंजेस किए तो यहाँ पे आया, आगम हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो। ब्रांचेस में देखना अपना नाम भी आएगा, बहुत सारे ब्रांच है, अपना नाम सर्च कर लेना, अगर नहीं आ रहा हो तो टेंशन मत लेना। व्यू ऑल ब्रांचेस है या फिर जो भी नाम है तुम्हारा सर्च कर लेना, आ जाएगा। यहाँ तक सबका हो गया कि नहीं हुआ बता दो बस। हो गया, अगर ये हो गया तो बस पुल रिक्वेस्ट वाला वो जो कल जैसे बताया था वैसे ही होगा सब लोग। सर गिट पुश के बाद कौन सा कमांड था? पुश ही है कमांड, और कुछ कमांड नहीं है। गिट पुश ओरिजिन और अपना ब्रांच का नाम। सर ऑथराइज गिट क्रेडेंशियल मैनेजर कुछ आ रहा है। हाँ, वहाँ पे ऊपर तुम्हारा ऐसे गूगल में खुला होगा ना, ऐसे कि हाँ पर्सनल एक्सेस टोकन या फिर गिट साइन इन विथ योर ब्राउजर करके। हाँ, तो साइन इन विद ब्राउजर किया था। हाँ तो तुम्हारा अच्छा ब्राउजर में गिटहब क्रेडेंशियल्स वो डाल दो ना कि कौन सी ईमेल आईडी से तुमने किया था। अच्छा, सर गिट एड डॉट के बाद क्या करना है? Am I audible? यस सर। पावर कट हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। ऑथेंटिकेशन सक्सीड हो गया ना, सक्सीड हो गया तो तुम्हारे कमांड लाइन में ऐसे आ जाएगा, पुश हो गया करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे अपना वो आ जाएगा जो भी है। यहाँ पे देखो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट आ रहा है, बता तो मैं तुम्हें अभी यहाँ तक सबका हो गया कि नहीं हुआ ये बता दो। जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो तुम्हारा ईमेल आईडी और तुम्हारा पासवर्ड होता है शायद,
तो अगर गूगल में लॉगिन नहीं हुआ होगा तुम्हारा गिटहब का अकाउंट, तो तुम्हारा गिटहब के अकाउंट का डिटेल्स पूछता है कि गिट लॉगिन कर लो करके, बस और कुछ नहीं होता। सबका हो गया ना? सर गेट एट डॉट के बाद क्या करना है? ऐड डॉट, ऐड डॉट कर लिया ना। गिट कमिट, जो मैसेज तुम डालना चाहते हो, गिट कमिट -m, वरना कुछ ऐड में लिख देता हूँ, -m और मैसेज, मतलब तुम क्लैरिटी देना चाहते हो कि हाँ ये चीज मैंने की है, वो बताने के लिए, कल जैसे अपन ने यहाँ पे किया था इस वाले में। गिट में यहाँ पे जो कमिट करते हैं चेंजेस, जो तुमने चेंज किया वो चीज तुम बताना चाहते हो, तो उसके लिए गेट कमिट -m और योर मैसेज जो डालना चाहते हैं। और उसके बाद गेट पुश ओरिजिन और अपना ब्रांच का नाम यहाँ पे होगा, तुम अगर कौन सा ब्रांच है, मेन ब्रांच है कि जो भी है, यहाँ पे ब्रांच का नाम आता ही है हर बार। तो गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख दो और एंटर क्लिक करना, तब तुम्हारा ऑथेंटिकेशन का पूछेगा। सर अब ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा ब्राउजर पर। तुम्हारा अब ये क्लिक करने के बाद क्या हुआ? गिट पुश सर ओरिजिन और ऑप्शन ने ऑथराइज विद ब्राउजर पे क्लिक करा था, उसके बाद फिर कैंसिल करा क्योंकि फिल करना था, तो फिर अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा और यहाँ पे आ रहा है प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर। काम करो, अपने ब्राउजर में जाके गिटहब लॉगिन हो जाओ एक बार, अच्छा गूगल क्रोम या एज जो भी खुला था वो देखना कि कौन सा खुला था, तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो उसमें जाके चेक करता है जनरली, तो वो भी देख लेना। शायद इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा सभी का, वो अगर गूगल क्रोम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार गिटहब ऑथेंटिकेशन में बोलो। सर ऑथेंटिकेशन सक्सीड तो आ गया सर, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना, ये अपने आप हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, वहां सर तक ही बताया मैंने। सर उसके बाद वो, अच्छा अच्छा ये वाला ठीक है, ओके सर। सर गेट पुश के बाद है ना, कुछ हुआ ही नहीं एंटर करने के बाद। गिट पुश ये लिखा था ओरिजिन और अपना ब्रांच का नाम, यस सर। तो नीचे क्या आया था? यहाँ पे कुछ अगर एरर होगा तो एरर शो करता है, या फिर अगर हो गया होगा तो ऐसे आएगा। सर बस एंटर हो गया, नीचे की लाइन में कर्सर आ गया एंड कुछ लिखा हुआ नहीं आया, एरर भी नहीं आया। तो वहां पे नीचे एक बार देखना, कुछ आइकन आया है क्या ऐसे कि तुम्हें ऑथेंटिकेशन करने के लिए अगर आया होगा, तुम्हारे शायद स्क्रीन पे पॉपअप नहीं हुआ और एक और कुछ खुला हो ऐसे ब्राउजर पे। गिटअप साइन इन करके कोई आया है। हाँ, तो वहाँ पे साइन इन विथ योर ब्राउजर कर दो, या साइन इन का तुम्हारा सीधा साइन इन का पेज आ गया क्या गिटहब का? गिटअप साइन इन और साइन इन विद योर ब्राउजर और पर्सनल एक्सेस टोकन ऐसे आ रहा है। हाँ, तो तुम अगर साइन इन भी कर सकते हो या फिर साइन इन विथ योर ब्राउजर भी कर सकते हो। साइन इन मतलब तुम्हें अपने डिटेल्स डालने हैं, मेल वाला जो भी मेल और पासवर्ड जो था तुम लोगों ने दिया था वो, या फिर साइन इन विथ योर ब्राउजर करोगे तो ब्राउजर से हो जाएगा अपने आप। ट्राई कर लो, Yes. थोड़ा जल्दी कर लो, इसके बाद HTML थोड़ा सिखाना है आज, ये लंबा सर खींच साइन इन, जाएगा। तो मैंने भी साइन इन विद ब्राउजर किया था, बट फिर उसके हाँ, बाद हुआ नहीं कुछ भी अभी तक। ब्राउजर कुछ खुला नहीं तुम्हारा? नई विंडो आ रही है, उसमें मतलब ऑप्शन है बहुत सारे। मतलब उसमें लास्ट में कैंसिल और ऑथोराइज गेट क्रेडेंशियल मैनेजर ये दो आ रहे हैं। ऑथोराइज गेट क्रेडेंशियल मैनेजर पे क्लिक करना है।
ऊपर वो नहीं आया क्या कि गेट साइन इन विथ योर ब्राउजर या गेट का ईमेल आईडी डालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं आया क्या ऑप्शन नो ऊपर सर, वो डायरेक्ट स्टार्टिंग? सर वो तो ऑलरेडी साइन इन हो रखा है ना सर। ऑलरेडी साइन इन हो रखा है क्या तुम लोग? सर ये वो सब ही मेरे आया था और फिर उसके ऑफ बाद करने उस के पे लिए क्लिक साइन करना इन है। एक सेकंड एक के बाद एक। सर मेरे साथ भी सेम इशू था, बट ये जो मैसेज है ना कि आगम हैड रीसेंट परचेस ऐसे करके हाँ मैसेज आ गया था, मतलब हो गया ना। हाँ, अगर तुम्हारा ये मैसेज ऐसे मैसेज आ गया तो हो गया। तुम्हारे इस टर्मिनल पे भी ऐसे आया होगा ना, गिट बैश वाला टर्मिनल में ऐसे पूरा ऐसे सेम का सेम ऐसे नहीं नहीं, आया होगा। प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउजर, अभी यही लिखा हुआ है। अच्छा तो फिर तुम्हारा और ये आ गया, ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ और ये आ भी गया तुम्हारा। नहीं, ये भी नहीं आया। हाँ तो ऑथेंटिकेशन अपने ब्राउजर में जाके गिटहब लॉगिन कर लो एक बार। सर लॉगिन भी है पहले से। उधर तुम्हारा कुछ डिफॉल्ट क्रीडेंशियल्स करके कुछ होगा, उसमें पासवर्ड मांग रहा होगा, वो पासवर्ड आप लिख दो अपना तो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ये खुलेगा फिर। हाँ उससे भी हो सकता है। ऐसा तो कोई कुछ नहीं पासवर्ड नहीं मांगा। हाँ नीचे नहीं क्रेडेंशियल मैनेजर करके आया होगा ना? नहीं, यस सर, ऑथोराइज क्रेडेंशियल मैनेजर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं ग्रीन कलर काम के करो, बॉक्स। हाँ ये आ रहा स्क्रीन है। शेयर करो एक एक। मेरे को भी नहीं। काम करो, एक जना स्क्रीन शेयर करो, कौन करेगा? इसका प्रॉब्लम एक एक बताओ, एक एक का सॉल्व करते हैं। इसका हो रहा था प्रॉब्लम। यस सर, मैं करती हूँ। तो ठीक है मानसी तुम करो। तो ये आ रहा है। शेयर हो ये रही? समय आ रहा है। हाँ ऑथराइज गिट क्रेडेंशियल मैनेजर करो एक बार। हो गया ऑथेंटिकेशन। टर्मिनल खोलो एक बार गिट बैश। हो गया। बट सर इसमें तो कुछ अब आ गया हेड आ गया? स्टैंड। यस। हाँ अगर नहीं आ रहा हो तो रिफ्रेश कर लो, रूबानी ने जैसा बोला ठीक है, रिफ्रेश करो आ जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत? और कोई हो गया हो तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, बस हो जाएगा। हर्ष हाँ बोलो। सर वो गेट बैश में मैंने वो डाल तो दिया था, वो ऑथेंटिकेशन के लिए चला गया, पर एक्चुअली पासवर्ड का कुछ गड़बड़ हो गया और वो स्लाइड ही बंद हो गई, और अब वो मतलब कमांड ही नहीं डालने दे रहे गेट बैश में। पासवर्ड याद नहीं थे क्या हर्ष तुम्हें? नहीं सर, कल जल्दबाजी में सेट किया था, याद ही नहीं रहा। तो अभी पासवर्ड याद है अभी कि रीसेट किया, कर दिया क्या सर, किया? रीसेट तो कर दिया, उसके बाद अपने आप ही वो मतलब वो वेब पेज ही बंद हो गया जिधर डालना था पासवर्ड। हाँ वो तो ठीक है, वो बंद हो गया ठीक है। अभी तुम एक काम करना, अपने ब्राउजर में जाके गिटहब लॉगिन है ना अपने ब्राउजर में, हम्म। तो यहाँ पे तुम्हारा तो एरर आ गया होगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो तुम्हारा। हाँ सर, आ गया था। हाँ तो एक बार वापिस ये कमांड डालो, गेट पुश ओरिजिन और अपना जो भी ब्रांच है वो डाल दो। सर वही कमांड ही नहीं डालने दे रहा है, मतलब अब वो डॉलर वाले सिंबल ही नहीं आ रहे। कंट्रोल सी दबाओ। हाँ सर, हो गया। आ गया क्या? अभी थैंक ऐसे आ गया होगा वापिस? यू। हाँ सर, आ गया। हाँ एक बार देख करो, उस वाला कमांड डाल के देखो, हो जाए तो बताना, तो फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे, बस उसके बाद फिर पुल रिक्वेस्ट को करना है।
सर ये रीसेंट पुशेस लिखा हुआ नहीं आ रहा सर उसमें, रिफ्रेश करने के बाद भी। यहाँ पे ऐसे आ गया ये सब। यहाँ पे पुश करने के बाद ऐसा आ गया ना कि काउंटिंग ऑब्जेक्ट है, न्यूमरेटिंग स्क्रीन शेयर नहीं हो ऑब्जेक्ट। रही है। सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ किया। अब दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे क्या आया फिर? किट पुश ओरिजिन तुम्हारा वो डालने के बाद यहाँ पे हाँ नीचे क्या है? सर, हाँ सर ये ऐसे ही आया बिल्कुल जैसा आपके आया हुआ है। ऐसे आ गया ना? तो अब एक हाँ काम सर। करना, तुम शायद ये वाला देख रहे हो, MLS वाला रिपोजिटरी खोल के देख रहे हो। अपना है, अपना रिपोजिटरी नहीं खोले शायद, एक बार देखना। यहाँ पे अपना नाम और ये आ रहा है क्या, MLH करके रिपोजिटरी का नाम? यस सर आ तो रहा है। या ये नहीं आ रहा है ऐसे, ब्रांच ऐसे क्रिएट हुआ कर? नो सर ये नहीं आ रहा। यस सर, मेरे भी नहीं आ रहा। पर अपनी स्क्रीन शेयर करना तो तुम्हारी तरफ से। यस सर एक। वरना एक काम करो, ब्रांच का नाम देखो अगर तुम्हारा ब्रांच क्रिएट हुआ है कि नहीं उसमें। यहाँ पे ब्रांच का दिख रहा है। अच्छा, क्या नाम है लोगों ने अगर क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे एक बार सर्च कर लेना, जो भी ब्रांच हो, तुम्हारा नाम जो डाला था ब्रांच का, एक बार सर्च करो। अगर आ रहा हो तो तुम्हारा चेंज पुश हो गया है, वो बस दिखा नहीं रहा है ऐसे। सर नेम तो आ रहा है खुशी। नेम आ रहा है ना, खुशी हाँ करके? सर। हाँ सर। तो तुम्हारा चेंज हो गया है, आ गया, पुश हो गया, तुम्हारे चेंजेस हो गए हैं, बस ऐसे दिखा नहीं रहा। तो एक काम करना, पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट होगा, वहां पे जाके तुम करना। अभी पुल रिक्वेस्ट होगा, बाकी सबका हो गया ना ऐसे? हाँ सर। यहाँ पे अगर जिसका भी आया हो सभी ऐसे कर देना, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, वैसे आ जाएगा। बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देना। यहाँ पे जब कल बताया था तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कमिट वाला मैसेज और जो भी तुमने चेंजेस किया, यहाँ पे वो लिखना पड़ता है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दो, बस हो गया। ये देखो, यहाँ पे कल तो खुद का ब्रांच था इसलिए आ गया था। अगर किसी और का हो तो ऐसा आता है, ओनली दोज विथ राइट एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी। तो मर्ज का ऑप्शन उन्हीं पे जाता है जो ये हेड करता है ना। यहाँ पे MLH है तो वो हेड करता है, तो वो एक्सेस को हो सकता है वो ऐड कर सकते हैं, ऐसा होता है। मैं अपना पुल रिक्वेस्ट देखना होता है, ऐसे कर सकते हो। ये देखो, अंबानी का हो गया, भाटना का, रक्षा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, अगर तुम लोग का अच्छा पुल रिक्वेस्ट जिसका नहीं आया, वो उनका यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करके टैब होगा साइड। हाँ सर। यहाँ पे सर देखना पुल रिक्वेस्ट कर। हाँ, सर इधर मतलब गिट बैश में अभी दिखा रहा है कि हर्ष कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ब्रांच, फेटल एरर। हर्ष देखना पड़ेगा शायद तुम्हारा क्या इश्यू है। अभी एक सेकंड रुक जा हर्ष, तेरा मैं बाद में करता हूँ। फिलहाल अभी सबका पुल रिक्वेस्ट जो भी है वो एक बार खोल के देखो। अभिषेक, तूने मेरा फोर्क किया था कब है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो तेरा यहाँ पे आ गया। और पुल रिक्वेस्ट किसका, सबका हो गया ना? किसका नहीं हुआ ये बताओ पुल रिक्वेस्ट अभी? सर मेरा नहीं हुआ। क्या नाम है हर्षिता। तुम्हारा? क्या खुशी। वैसे
चेंजेस हुआ है करके ऊपर दिखा नहीं रहा था कि यहाँ पे सर ऐसे? मेरा अभी भी ऐसा आ रहा है an error occurred while sending the request was aborted, could not create SSH TLS secure channel. मेरा पुश ही नहीं हुआ शायद हर्षिता। हर्षिता अपना स्क्रीन शेयर करिए एक बार। हाँ एक सेकंड। हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं हुआ। हाँ हुआ शायद। हाँ हो गया। साइन इन विद ब्राउज़र कर दिया। काम करना है यहाँ पे, कंट्रोल सी दबाना, ये छोड़ दो। कमांड लाइन में कंट्रोल सी दबाना। इतनी बार एंटर दबा दिया। हाँ फिर ये आ रहा है। क्या एरर दिखा रहा है वहाँ पे गिट बैश में? हाँ उसके लिए क्या करूँ? विंडोज 7 है क्या तुम्हारा? हाँ इसी कारण प्रॉब्लम आ रहा है। हर्षिता हमारा शायद अपना विंडोज 7 के कारण वो नहीं हो रहा है ऐसे। तो मैं बताता हूँ, तुम्हें 2 स्टेटमेंट्स शायद अलग से ऐड करना पड़ेंगे, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। ये वाली चीज तुम्हें डालनी पड़ेगी कमांड लाइन पे वरना एक काम करना हर्षिता, तुम अभी के लिए छोड़ दो ये चीज, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तुम्हारा विंडोज 7 है ना, उसका हाँ। अलग से सिस्टम होता है, तो मैं देखता हूँ एक बार, देख के मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा शायद वो ये 2 स्टेटमेंट है शायद वो ऐड करना पड़ता है। सर कौन है अभिषेक? हाँ बोल। सर अगर जैसे कोई रिपॉजिटरी अपने अकाउंट से डिलीट करनी हो तो कैसे करें? उसके टेंशन पे मेरा अभी तू यार, वहाँ पे सेटिंग्स होगा, सेटिंग्स के लास्ट में डिलीट द रिपॉजिटरी का ऑप्शन होता है गिटहब में। वहाँ पे ऊपर जहाँ पे कोड पुल रिक्वेस्ट वगैरह है ना, वहाँ पे सेटिंग्स होगा, वहाँ के लास्ट में देखिए। बाकी को खुशी, अच्छा क्या हो बता खुशी? हाँ सर, वो रीसेंट पुशेस नहीं दिखा रहा था, तो अभी मुझे कैसे करना होगा वो? वहाँ पे साइड में पुल रिक्वेस्ट वाला टैब होगा ना शायद, देखना। यस सर, यस सर। हाँ उस पे क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन होगा क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट करके देखो। क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट, यस सर। हाँ तो वहाँ पे क्या कैसा आ रहा है? क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट आ रहा है और एक न्यू करके एक टैब है, तो किस पे क्लिक करूँ?
नहीं, एक बार स्क्रीन शेयर करना। अच्छा, एक मिनट सर। हाँ सर। हाँ, सर ऐसे। न्यू पुल रिक्वेस्ट है ना, ये क्लिक करें। अच्छा, पासवर्ड isn't anything to compare, ऑलरेडी पुल रिक्वेस्ट डाल दिया है। ऑलरेडी कम पुल रिक्वेस्ट डाल दिया है क्या खुशी? ऐसा आ रहा है। सर मैंने तो नहीं डाला था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। एक बार अपने अच्छा तू अपने रिपो में जा, जहाँ पे फोर्क किया था, ये MLS वाला रिपो है। इस पे क्लिक करूँ? नहीं नहीं, ऊपर जा, सब ऊपर। और ऊपर वहां पे तुम्हारा तेरा रिपोजिटरी खोल, तूने तेरा नहीं खुला हुआ है, यहाँ पे देख MLS का खुला हुआ है। ओके। अपना रिपोजिटरी खोल, सीधा ऊपर जाना, ऊपर नैव बार आएगा तुम्हारा। ब्राउजर को ऊपर कर थोड़ा, स्क्रॉल अप कर, स्क्रॉल अप। हाँ, यहाँ पे देख अपना वो आइकॉन है ना प्रोफाइल वाला, वहां पे नहीं, राइट साइड, राइट से लास्ट वाला, हाँ उस पे क्लिक कर, योर रिपोजिटरीज। यहाँ पे MLS वाला क्लिक कर। ब्रांचेस इवन करके आ गया तेरा तो। अच्छा, मास्टर ब्रांच। एक बार देख अपना ब्रांच खोल एक बार, यहाँ पे मास्टर है ना। तेरा ब्रांच है कि नहीं देख एक बार, खुशी। क्लिक कर उसको। ब्रांचेस वन कमिट है, पुल रिक्वेस्ट पे जा अभी। न्यू पुल रिक्वेस्ट क्लिक कर। हेड रिपोजिटरी काम कर, यहाँ पे जो हेड रिपोजिटरी टू प्रोग्राम खुशी है ना, यस सर। उसमें अपना ब्रांच देख एक बार। यहाँ पे साइड में होगा, उसके साइड होगा शायद, उसके साइड पे। सर मतलब कौन सा, यही वाला क्या? सर कौन सा वाला? ब्रांच यहाँ पे साइड में कंपेयर मास्टर जो लिखा हुआ है ना साइड में, उसमें देख अपना ब्रांच को खुशी। हाँ, ये देख नीचे देख, यहाँ पे अभी तूने जो चेंज किया, तूने जो ऐड किया वो आ गया, तो अभी सीधा ऊपर वो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते, तो तेरे ब्रांच से नहीं, मेन ब्रांच से देख रहा था इसलिए। हाँ, बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर, कभी कभार पिठा पसंद रह जाता है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देते। हो गया। ओके। और किसी का? 6 बज गए, अब तो मैं फोन कर देता हूँ। मेरे भी सेम मिस्टेक आ रही थी सर। ये कंपेयर के अंदर जब चेंज किया उसके बाद क्या किया? कंपेयर करने के बाद सीधा तुम्हारे में नीचे आ जाएगा ना कि चेंजेस हुए, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके आ जाएगा, देखना। कौन बोल? निर्मल, यस सर।
तुमने कंपेयर में अपना ब्रांच खोला निर्मल, हाँ तो वहाँ पे कुछ चेंज हुआ? नीचे आया क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करके ऑप्शन आया, राइट साइड में ग्रीन कलर का बटन आया होगा। नहीं आया। 2 मिनट और, उसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। बस एक बार निर्मल तो अपना स्क्रीन शेयर कर दे, तेरा एक बार देख ले। बाकी अगर किसी का भी रह गया हो प्लीज लास्ट में करवा लेना अभी के लिए। बाकी बच्चे भी हैं, उनको आगे बढ़ना है, बाकी सबका हो गया 10 मिनट से देख लो। कंपेयर निर्मल, तूने भी वही वो वाली रिपो खोल रखी है, अपना रिपोजिटरी खोलो, अपना रिपोजिटरी खोल के अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर, राइट साइड में, राइट साइड से लास्ट। हाँ योर रिपोज, रुक जा, ये हाँ full request, और कंपेयर मास्टर में आप अपना ब्रांच डालिए। इससे यही आ गया। वापिस MLH की आ गया। तूने 4 किया था ना, कुछ हाँ वर्क नहीं किया था? किया था। हमारे चेंजेस ही नहीं हुए शायद निर्मल। एक बार रुक जा निर्मल, वापस आ, तेरे को देखता हूँ अभी के लिए। किसका बाकी रह गया? इसका निर्मल का और हर्षिता का शायद। फिर मेरा भी। हर्ष, निर्मल, हर्षिता, 3 जने ना, और कोई? बाकी सबका हो गया, मैं तुम तीनों का देख लूंगा लास्ट में। अभी एक बार सभी ये वाला खोल देना जो चैट पे आया मैसेज स्लाइडो का, तो एक बार खोल लो सभी। को 1 2 3 4 5 स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ 14 है। 9 मेंबर्स, 11। क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और 30 सेकंड्स मिलेंगे। कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस पढ़ना है स्टेटमेंट को क्या है, यस और नो होगा। यस लगे तो यस, नो लगे तो नो, जो भी है बस क्लिक कर देना। 12 बच्चे ही है और 2 जन नहीं है। अब क्या यार, मैं नाम थोड़ी देखूंगा यार कौन नहीं है यार। अभिषेक है, देखिए कौन नहीं है नाम। अनन्या, ये तुमने ज्वाइन नहीं किया क्या? हाँ अब हो गया, अनन्या भी आ गई। चलो 15, मतलब हाँ सबने ज्वाइन कर। ठीक है, अब चालू कर दो प्लीज। यहाँ पे स्लाइडो में जाके हाथ देख, देख लो सभी जो है यस नो जो भी है क्लिक कर दो, अपने स्क्रीन पे आया होगा। 3 क्वेश्चन है, सिर्फ जल्दी करो। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, यस और नो ही है, कुछ कैलकुलेशन मैथ
गया। तो समझे कैसे? एक सेकंड ज्यादा इसीलिए तो लो दिया। चलो इसका भी गलत कर देख लेना। कम टाइम में मानसी ने दिया। कंग्रेचुलेशन। ये लीडर बोर्ड आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो क्वेश्चन में कि क्यों ऐसे क्यों नो है जो भी है। कोई डाउट नहीं है। सच जवाब देना, कुछ नहीं होगा, चलेगा। चल अपने बाप। अरे सारा अभी तो तुम आगे यूज करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ये है ये है। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। कुछ नहीं, समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तो पता चल ही जाएगा कहाँ पे गलत जा रहा है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो वगैरह हो तो बोल दो कि सर डाउट है, तो चाहे तो तुम्हें अलग से डाउट सेशन ले लेंगे, या फिर डिस्कॉर्ड पे आ जाना, डिस्कॉर्ड पे पूछ लो, या फिर डिस्कॉर्ड के किसी चैनल में, वॉइस चैनल में चलेंगे, कभी भी पूछ सकते हो। अगर बीच में तुम्हें, जब मैं बोलूंगा, अभी तो मैं गिट के चेंजेस वगैरह अभी करने को बोलूंगा, असाइनमेंट होगा तो तुम करोगे तो उस हिसाब से पता चल जाएगा तुम्हें भी कितना तक आया है नहीं आया। अगर नहीं हो रहा होगा तो तुम डाउट भी पूछ सकते हो गिट के चैनल में। कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी पूछा बाद में नहीं पूछना। पूछ सकते हो ऐसा। आज नहीं पूछना तो कल पूछ लेना, कल वापस लौट आया। गिट के बारे में तो हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं जो मेन मोटिव था इसका, फ्रंट एंड बेसिक्स ऑफ फ्रंट एंड। चालू करते हैं क्या है क्या नहीं।
पाओगे ना, सुन लोगे ना बेसिक्स। नहीं सर नहीं होगा हमसे, 5 मिनट ब्रेक दे दो सर, थोड़ा पानी वानी पी के फ्रेश होके आते हैं सर। ऐसा कोई किसी को भी 5 मिनट ब्रेक ले लो, थोड़ा एनर्जी ले लो, मैं भी थोड़ा पानी वानी पी के आ जाता हूँ, वरना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बता दो यार चैट पे। कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। अभिषेक तो हाँ ही बोलेगा हर चीज का, अभिषेक तो बहुत। बाकी बाकी बच्चे बोलो। पानी तो सर पीते रहते सर रोज पीते थे। अरे सर मत बोलो यार, कौन है? अनन्या। सर आगे क्या, सर के आगे क्या? हमारे class में energy रहती है। आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ कि नहीं, समझने आया अनन्या? काम करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, वरना क्या 6:13 है, चलो 6:20 पे आना सभी वापस। कॉल में ही रहना, म्यूट करके फ्रेश होने जाना है बाहर, एक बार हवा खा के आता हूँ, पानी पी के आता हूँ, जो करना कर लो। 6:20 पे मिलते हैं वापस। एवरीवन बैक। स्टार्ट। share my screen. Screen share हुई ना? Let's get started with content. So basically what front-end is, front-end web development is the development of graphical user interface of a website. The use of technologies like HTML, CSS, JavaScript, which I'll teach you later on. Basically, you can say what you see on website. What is, you can say, the front side of the website, which is the front side of the website, that is the front-end development, and there is also back-end. We have attended the session of Tushar, you may be knowing what are the differences. Right. With the YouTube itself. What this icon, these icons, what is written, what are these and all, it all comes in the YouTube. That's front end part. And when you click on that, what this is all front end. When you click on this, it changes to this URL and all. This all comes under backend. When it changes and it comes this, the design of this HTML is basically what you have written, whatever the content is present. Okay, this all. Hello everyone, new video for you. This all comes under HTML.
and the positioning, this color, red color, circular image, these all is done by CSS. HTML is basically the structure part. Like it is a markup language. HTML full form is hypertext markup language. So it is a markup language. Markup language in the sense it contains tags in it. Those tags contain content. So what is HTML? It defines basically this is the structure of HTML. I'll go with the code tomorrow. I guess you will be tired. So let me just go through the basics with this. It is basically this is the structure HTML. These are the tags which I will be talking about. The HTML tag, the body tag. Yeah. So this is the HTML tag, body tag, what are the all? And these are all tags. This is a heading, this is a paragraph. This is the content which you want to show, which you want to display on the screen. So that is the HTML. I'll teach about this and what it later. And the JavaScript makes the browsing easy. Basically, CSS is the styling part. In a single word, HTML structure, CSS is done for styling, and JavaScript, it is a normal programming language which will help you to work easily with this. So if you want to, I will start coding tomorrow itself. I won't be doing it today. I guess you won't be in the mood to do the code. Actually, this is the Visual Studio Code. You all may have downloaded, which you can see. I'll just go through what is what and all in this also. This is the editors portion. What editors you have opened. This is the creating new file thing, and this is the folder option. If you open a folder, you'll be knowing it. See, I have opened a folder. These are the files in it. This is the HTML file. So see, whatever you want to show, it is here. This is the content which you want to show. So this is the HTML thing. This is JavaScript. I'll talk about it later. Let's open the CSS file. This is the CSS file. Is how you want to show color. See the font weight, bold, what is the font size, width of it, and this flexional I'll tell you later what will be the height and all. This is all you can show. And the browser side, okay, let me show you this. Right click on a browser, get the inspect element. You all will be getting it this way. So here is the code which they have used. Basically you can't copy it. Simply you can copy, but this won't work on your locals also. So these are the stylings which they have used. You can see. I'll let you know tomorrow when you work on your site. You will be knowing clearly which you have used and which you haven't. With this, you may get confused. So basically, right now, after this, first I'll be teaching you the HTML part tomorrow, and then I'll be helping you in creating your portfolio and one other project which I will be teaching you. That is calculator one. I will tell you which one it is. I won't reveal it. So in that you will be creating a portfolio with the help of HTML, CSS, a basic portfolio, so that you can at least show after the bootcamp that yes, this was the output of my bootcamp.
I'll tell you how it is, and I'll be working with you tomorrow for the HTML coding part. And if time permits, I'll start with the CSS also, the basic of CSS. Tomorrow it will take 2 days, I guess, CSS. So I'll be teaching you. In this, you will be having you can even add extensions also for you if you want. You can add. I guess you will be having the print here. You can add a file like this. Let me just show you. X1 dot. I have created a file, HTML file, and you click this exclamatory mark. You get this abbreviation, Emmet abbreviation. So basically, they fill the form. The VS Code, this helps a lot. So what is the doc type? This one defines which one it is. So HTML, this doc type is HTML. It defines with this. This is the language you are using. It's English, so EN. There will be other Spanish, I guess, SP, and French, FR maybe. So which language you are using, that will be specified. This is the header, and this is the header part, and this is the body part where you will be writing what code it is. So this is the meta, which characters are to be used. UTF-8 is the basic known for HTML5. So in this, you will be learning, you will be having what characters are to be included. Some characters won't be recognized by the HTML. So for it to recognize, we write this UTF-8. And this one is not much necessary for now. We'll leave this. This is the meta. This is for responsiveness, that when the same website works beautifully even on the laptop as well as in the mobile browser also. This thing also helps for changing its viewport. Viewport in the sense what size it is, like in the laptop viewport or mobile viewport, tab viewport, that changes this. This is the title which you see here above. Okay. Here you have seen HTML Google Slides. For YouTube, you will be seeing YouTube, and for these and all, my GitHub one. Here you can see GitHub workflow. So what you write here, the title, that will be displayed here. My Drive, just when in Google Drive, it's My Drive. So whatever is written here, that will be shown up there. And this is the body part where you will be writing the different tags and the content which you want to show in this. So content showing part, I will let you know tomorrow. That's it for today. Any doubts? I guess someone was left. 2 or 3 guys were left with it. I'll just show you what it is. Any doubts, please let me know. And everyone, I guess, just fill this form which Saurav has sent. It has been sent on chat. Fill in your GitHub details. Everyone should have a GitHub account, that's why. I guess by now everyone is clear about what is Git, GitHub, what are the uses, why we use GitHub, and the starting of the basic of frontend. What is frontend actually? Frontend has even different frameworks. Those are all JavaScript frameworks, React.js, Next.js. Even styling has frameworks, Less, Sass, Tailwind. Those are all different advanced scripts. We'll let you know later on. For now, you will be learning the basics of Git, HTML and CSS. So if anyone has any doubts, you can ask. And I guess 2 or 3 guys were left with that Git issue. Stay, I will clear those issues with you. And please do fill this form so that we have your GitHub details, like GitHub account. Everyone. Is everyone done with the? So this is the end of the session. I hope everyone liked it.